Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Ashika and I am an 11th grader, and this video is going to be another study vlog. आज मैंने स्कूल से छुट्टी ली है so that I can study, and I always have so much work to do. Like मेरा काम अब कभी ख़त्म ही नहीं होता है. Like 10th grade में I was always ahead of everybody else like in school, बट नाउ इट्स लाइक जो मेरा खुद का काम है मेरा वही कभी ख़त्म नहीं होता है. सो आई ऑलवेज हैव वर्क टू डू, एंड ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हाँ मेरा सारा काम हो चुका हो एंड आई एम लाइक हाँ अब मैं फ्री हूँ, अब मेरे पास काम नहीं है कुछ करने को. So yeah, we have a lot of work today, and we're going to start with our to-do list, and I'll share a lot of hacks that I use while I'm studying. I'll show you how I do my revision, how I make my notes. So yeah, stick around for all of that. बाय द वे आज मैं बहुत लेट उठी थी, सो हाँ मेरा काफ़ी टाइम उसी में ऑलरेडी जा चुका है, एंड आई हैव ऑल्सो डन माई ब्रेकफास्ट ऑलरेडी एंड मैंने सारा काम कर लिया है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग पढ़ाई. सो हाँ, लेट्स डू दैट ओनली. एंड उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई हैव टू राइट डाउन माई टू डू लिस्ट. सो उसी से स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर समवन हु रेगुलरली वॉचेज माई स्टडी व्लॉग्स, you would know I always start with writing down my to-do list, and honestly it really helps me stay organized. It's super important, and I highly recommend you all to always write a to-do list before you start so that you know exactly what you have to do. Also guys, further in the video I'll give you all a proper syllabus update, so wait for that. Last Sunday I had 2 tests of 180 marks each, so उनमें से एक टेस्ट को मैं आज एनालाइज करूँगी. लेट मी शो यू मेरे मार्क्स में कितने आए हैं. सो दिस इज़ द टेस्ट. आई स्कोर्ड 139 आउट ऑफ 180, एंड मेरे 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे आउट ऑफ 54, एंड 2 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे. सो ये सब अभी मेरे को एनालाइज करना है. जो मेरे गलत क्वेश्चंस थे उनको वापस करके देखना है, एंड आई सी क्या मिस्टेक हुई है, एंड जो अनअटेम्प्टेड थे उनको भी आई विल सी कि वाई आई वाज नॉट एबल टू डू देम. सो या लेट्स स्टार्ट. टेस्ट को देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे एनालाइज करना एंड अपनी मिस्टेक्स को एक्चुअली में अंडरस्टैंड करके उन पर वर्क करना. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट देन गिविंग द टेस्ट इज़ बेसिकली पॉइंटलेस. चाहे तुम्हारे उसमें कितने भी कम मार्क्स आए हो या फिर कितने भी अच्छे मार्क्स आए हो, यू नीड टू स्टिल एनालाइज सारी मिस्टेक्स. अगर तुम अपने कम मार्क्स को लेके सैड होकर बैठ जाओगे विदाउट एक्चुअली फिगरिंग आउट वाई यू स्कोर्ड सो लेस, देन you will never actually improve. But if you actually sit with your mistakes, analyze them, work on them, and get each and every little doubt cleared out, फिर तुम्हें सच में समझ आएगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, and तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा उन्हें अवॉइड कैसे करना है. सो इट्स सुपर इंपॉर्टेंट. Also guys, whenever I finish a chapter, I don't revise it by just rereading the notes, as the information is very cluttered and unorganized, and it's the most inefficient way of revising. Instead, I upload my PDF into Wondershare eDrawMind. After I upload my PDF, within seconds, it automatically transforms the entire chapter into an AI-powered mind map, organizing all key topics in a clear and structured format. I find the color-coded branches very useful because they make it easier to visualize how different concepts are connected. And in the mind map for each subtopic, I can add my own notes, and the AI notes feature is also super useful in generating perfect notes of the topic. Instead of memorizing isolated points, I can understand the overall flow of the chapter, making revision more efficient, and it also improves my retention. Before I begin solving questions, I quickly go through the mind map to get a complete overview of the chapter. I also use it to organize my study plan so that I know which topic I have revised and what I have to cover next. If you are looking for a more visual and organized way to revise your chapters, I would definitely recommend checking out Wondershare eDrawMind. If you are interested, you can check out the link in the description below. Now let's move on with the video. So yeah, I was done with the analysis and I checked it off my to-do list. After that, I started revising kinematics. जब ये topic class में हुआ था, I honestly did not understand it, so I was just watching Rajvan sir का lecture to hopefully understand it this time. जितने भी resources मेरे पास available हैं, I try to make maximum use of them. क्योंकि मुझे मेरे physics के sir से समझ नहीं आया, so I just switched to Rajvan sir to understand this one particular topic. And honestly, I was able to understand it after watching this particular lecture. And after this, I went back to the questions which I was trying to do before and I was not able to do, and I was able to solve them. उसके बाद lunch time हो गया था, तो फिर मैंने भिंडी खाई जो बहुत ज़्यादा यम्मी थी. सो मैंने अभी अपना काइनेमैटिक्स का होमवर्क कंप्लीट किया है, एंड उसमें देयर वर 3 क्वेश्चंस, एंड 3 में से मुझसे एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ क्योंकि वो तीनों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे. सो या आई ट्राई टू डू देम अगेन टुमारो. एंड उसके अलावा आई रिवाइज रिलेटिव मोशन क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया था व्हेन आई स्टडीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड अभी तक मैंने लाइक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ढंग से रिवाइज नहीं किया. मेरे को भी करना है.
and I also need to look at the conditions of zero drift and minimum time in riverboat problems. So yeah, I'll just quickly go through all of that and then we'll move over to the next stuff that I have to do. इतना सारा काम है ना मेरे को, and थोड़ा सा काम करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है because the level of the questions are just so high up. Anyways, now let me give you all a quick syllabus update of everything that has been going on in my life, क्योंकि मैंने तुम लोगों को काफ़ी टाइम से एक सिलेबस अपडेट नहीं दिया है. सो इन मैथ्स हमारे स्कूल में ना 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड हमारे स्कूल में परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है नया, एंड हमारे स्कूल में 3D समथिंग समथिंग का भी चैप्टर चुका है. आई लाइक सी स्कूल में जो चैप्टर्स हुए हैं ना उसमें से मेरे को बस 4 चैप्टर्स आते हैं, एंड जो बाकी के 4 चैप्टर्स हैं आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ दोज चैप्टर्स. सो आई विल जस्ट डू दैम बिफोर माई फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स. एंड पता है हमारे स्कूल में लाइक जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होते हैं काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो फाइनल का 40% वेटेज रखने वाला है. बट एनीवेज अभी फ़िलहाल का फोकस इज़ माई कोचिंग, एंड कोचिंग में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे. इनइक्वालिटीज़ हो चुका है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो चुका है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री, वी हैव डन फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा, सेट्स, वी हैव डन क्वाड्रेटिक. हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं मैथ्स में, एंड कोचिंग में तो मेरा सही चल रहा है. बट स्कूल में आई एम लैगिंग बिहाइंड अ लॉट. लाइक मेरे को 4 चैप्टर्स पता भी नहीं है जो स्कूल में हुए हैं, एंड आई विल प्रॉब्ली कवर अप बिफोर फर्स्ट टर्म. आई नो आई विल मैनेज दैट, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता जो भी चल रहा होता है. सो या, एंड इन फिजिक्स इन माई कोचिंग वी आर डन विद न्यूटन्स लॉ, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रिक्शन चल रहा है अभी हमारा, जो बहुत छोटा चैप्टर है. आई थिंक फटाफट ख़त्म हो जाएगा. एंड स्कूल में वी आर ऑलमोस्ट डन विद वर्क एंड एनर्जी, एंड स्कूल एंड कोचिंग वो साइमल्टेनियसली मेरा मैनेज हो पा रहा है इन फिजिक्स, सो आई एम नॉट हैविंग ट्रबल इन दैट. एंड इन केमिस्ट्री स्कूल में हमारा केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो चुका है, एंड कोचिंग में केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है. नो वेट, स्कूल में ख़त्म नहीं हुआ है, स्कूल में भी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है एंड कोचिंग में भी केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है. एंड दोनों मेरा आई थिंक आई एम डूइंग फाइन. आई जस्ट हैव अ बंच ऑफ स्टफ टू लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग. कोचिंग का तो मैंने अब तक लर्न नहीं किया है, तो मेरे को वो करना है. बट या, आई थिंक दैट आई विल मैनेज. बट मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी मैथ्स में आ रही है, एंड जो मैंने लास्ट सिलेबस अपडेट दिया था तुम लोगों को उसमें भी मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ्स में ही आ रही थी. सो या, आई डोंट नो ये कब से होने लग गया कि मेरे साथ कि मुझे मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आए, बिकॉज लाइक टिल टेंथ मैथ्स यूज टू बी लाइक माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. बट अब मेरे को मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. ऑनेस्टली मेरे को फिज़िक्स के क्वेश्चन में भी बहुत दिक्कत आती है. फ़िलहाल केमिस्ट्री इज़ लाइक द ईजीएस्ट फॉर मी, बिकॉज इट्स नॉट बहुत ज़्यादा सरप्राइज. केमिस्ट्री में मतलब जो एडवांस के क्वेश्चंस भी है ना वो भी लाइक नॉर्मल है, दे आर नॉट लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. बट फिज़िक्स एंड मैथ्स के एडवांस के क्वेश्चंस आर लिटरली लाइक. Anyways, yeah, so this was a quick syllabus update. Now let's just move on. Now I am revising inequalities. हमने बहुत सारी different types की inequalities पढ़ी थी क्लास में, so I was just going over all of them क्योंकि मेरे को एक होमवर्क करना था जिसमें 30 क्वेश्चंस मिले थे हमको, एंड आई थॉट कि एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ एंड फिर आई डू दी होमवर्क, ताकि मेरे को किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी टाइप का कोई डाउट ना रहे. एंड जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है जो मेरे को याद नहीं रहती, आई जस्ट राइट देम डाउन ऑन स्टिकी नोट्स एंड स्टिक देम ऑन माई पिन बोर्ड सो दैट आई कॉन्स्टेंटली लुक एट देम एंड मेरे को वो याद रहे. दिस टेक्निक honestly helped me remember a lot of information, and I quickly revised them during tests. Then I went नीचे and I got this bhujia for myself because I was feeling very hungry. And अब 4 बज गए थे and 4 से 8 मेरी classes होती है. So yeah, now I'll have to attend my classes and I will get back to you after my classes are done. सबसे पहले I had मेरी maths की class जिसमें we were doing inequalities once again, and after that I had my physics class, so I was attending that. Also guys, do let me know in the comments when your midterm exams are starting, because I am curious to know अगर हम सबके सेम टाइम पे हो रहे हैं या फिर तुम लोगों के मुझसे पहले हो रहे हैं या फिर मेरे तुम सबसे पहले हो रहे हैं. माइन विल स्टार्ट ड्यूरिंग मिड सितंबर, एंड मैंने तुम्हें सिलेबस तो ऑलरेडी बता दिया है, एंड इट्स ऑनेस्टली सो मच. एनीवेज आई आस्क्ड माई पेरेंट्स टू गेट मी हनी चिली पोटैटो, सो दे गॉट मी दैट एंड आई वाज ईटिंग दैट व्हाइल अटेंडिंग माई क्लास. आई ऑनेस्टली लव दिस सो मच. फिर मैं नीचे आ गई थी वॉक करने मम्मी के साथ टू फ्रेशन अप माई माइंड, बिकॉज 4 hours of continuous class is honestly quite draining. And after the walk I also had my dinner, which was छोले की सब्जी and roti. ये भी काफ़ी yummy था, and I was also watching this movie while I was eating. I'm done with my classes and I've also had my dinner.
dinner and now I have to give a chemistry का test. मैंने पहले नहीं दिया था, so I have to do it right now. मेरा एक केमिस्ट्री का टेस्ट था ट्यूसडे को एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट एंड मेरे को वेडनेसडे को याद आया कि मेरा केमिस्ट्री का कोई टेस्ट भी था. तो हाँ, मेरे को जब याद आया तो उसके 1-2 दिन बाद मैंने इस टेस्ट को दे दिया एंड इट वाज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट वाज़ क्वाइट ईजी. बट मैंने बिना किसी रिविजन के दिया था, इसीलिए मेरे को पुराने चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं आते थे, लाइक ग्राफ्स एंड ऑल, बिकॉज मैंने उन्हें ढंग से रिवाइज़ नहीं किया था. सो या आई वॉज़ नॉट एबल टू डू वो वाले क्वेश्चन, बट जो रिसेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन थे वो सब मेरे से हो गए. आफ्टर दैट आई रिवाइज लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स अ रियली बिग चैप्टर, सो आई हैड टू रिवाइज दैट. एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने इसके कोई भी क्लिप्स नहीं फिल्म करे हैं, सो यू जस्ट हैव टू listen to my voice with this really cute sub background. Anyways guys, after I was done revising laws of motion, I just went to sleep. मेरे को अभी भी उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा जो मैंने नहीं किया है. सो या आई विल schedule that for some other day. Do subscribe for more such study vlogs and I love talking to you all and telling you all how I study. And thank you so much for 1.5 lakh subscribers. I am so beyond happy and I love you all so much. Do subscribe for more. Bye bye.